وصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح نصف الإيمان صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمدللہ رب العالمین۔ منبر پاک پہ تشریف فرما موقر علماء اہل سنت و تمام سامعین حضرات و عمر ساتھیو، عزیز بچوں، پردے کی آڑ میں بیٹھی ہوئی میری ماں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ مبارکباد کے قابل ہیں عالی جناب محمد آزاد صاحب، جنہوں نے اپنے شہزادے کی شادی خانہ آبادی کے موقع پر جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام و انتظام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر دارین کی نعمتوں سے انہیں مالا مال فرمائے اور یہ ان کے اس کار خیر کو عزت و آبرو کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچائے۔ علماء کرام جو آج یہاں تشریف رکھتے ہیں، الحمدللہ یہ اچھی محفلوں کو اپنے نام کر لیا کرتے ہیں۔ میری مراد واسف شاہ ہدا، شہنشاہ ترنم حضرت حافظ و قاری محمد سرتاج رضا نظامی المعروف ہدایت بستوی صاحب، جو کہ یہاں تشریف رکھتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے خطیب و امام حافظ و قاری محمد انصار رضا صاحب قبلہ اور حافظ و قاری عبدالعزیز صاحب نظامی اور قاری محمد افتخار عالم صاحب قبلہ فیضی اور عزیز القدر قاری محمد حسین رضا نظامی، یہ تمام لوگ زینت اسٹیج بنے ہوئے ہیں اور آپ لوگ زینت محفل بنے ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ دونوں لوگوں کی زینت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دیکھیے، شادی خانہ آبادی کے موقع پر بہت اچھی محفل سجی ہوئی ہے اور اچھے لوگ تشریف لائے ہوئے ہیں۔ ویسے تو جانا تھا مجھے، لیکن وہ وقت نکل گیا۔ قاری محمد انصار رضا نے یہی کہا کہ عشاء کے بعد فوراً شروع ہو جائے گا، آ جائے گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ یہ حق تھا قاری محمد افتخار عالم صاحب کا بیٹھنے کا، شہنشاہ ترنم ہدایت بستوی کے پڑھنے کا، لیکن سماج کل یہی کہتی کہ جب سے شروع ہوا لاسٹ تک صرف نعت ہی چلی، اس لیے موقع کے نزاکت کو سمجھتے ہوئے نقیب اہل سنت عزیز القدر محمد عبدالعزیز صاحب نے خطاب کروا دیا مجھے بٹھا کے، اور میرے بعد انشاءاللہ تعالی ہدایت بستوی کا بھرپور کلام ہوگا، بعد وہ حضرت کا خطاب ہوگا، پھر جیسا آپ چاہیں گے ویسا پروگرام چلے گا۔ شادی کیا ہے بھائی؟ شادی کیا ہے؟ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے؟ صرف سنت نہیں ہے، ایک موقع پہ شادی فرض بھی ہے، اور کبھی کبھی شادی حرام بھی ہے، کبھی شادی واجب بھی ہے۔ اب بتائیے وہ کب واجب ہے، کب حرام ہے؟ اب ایک بات بتائیے، شادی میں کتنی چیزیں فرض ہیں، کتنی چیزیں واجب ہیں، کتنی چیزیں سنت ہیں؟ یہی بتا دے آج کا مسلمان۔ بہت کم ہی لوگ ہوں گے جو بتائیں گے، اور بہت سے لوگ جان کے بھی نہیں بتائیں۔ دیکھیے، اس علاقے کے الحمدللہ جیتے جاگتے چراغ ہیں جو ٹمٹما کے چمک رہے ہیں۔ اختر علی صاحب، بس ماشاءاللہ، تو دو چار شعر پڑھ دوں صاحب۔ یہ چوکوا ہے، چوکوا،
और अल्हम्दुलिल्लाह चौकवा में चौक के सामने बैठ के चौका नहीं है लगाते हैं। यहाँ का प्रोग्राम तारीखी प्रोग्राम होता था, लेकिन अब क्या किया जाए, कुछ ऐसे हमारे बिरादरान हैं जो माहौल ख़राब कर दिए। नहीं, चौकवा की तारीख हर कोई कैंसिल नहीं करता था, चाहे जलसा का हो चाहे मिलाद मुस्तफ़ा का। बड़े दिलजमई के साथ लोग सुनते थे और शौक़ रखते थे। देखिए कल इनके घर एक बहुत बड़ी नेमत आने वाली है, आज़ाद भाई के घर। वो किसकी शक्ल में? बहू की शक्ल में, दुल्हन की शक्ल में, किसी की शहजादी बहुत बड़ी नेमत बनकर इनके घर में आने वाली है। अल्लाह का बेपाया फजल और उसका एहसान है कि अल्लाह ताला इनको इस मंजिल पे पहुंचाया है। मेरी माँ और बहनें, आप सब भी शादी में आते हो, शादी को सुनते हो कि शादी सुन्नत मुस्तफ़ा है। तो शादी क्या है? शादी सवाब है, नेकी है, इबादत है। शादी इबादत है। तो अब इस इबादत को हम लोग किस तरह गड़बड़ कर बैठे हैं, जब क्या बताएं, अफसोस होता है। शैतान खिलखिला के हंस रहा कि देखिए जो अल्लाह को वाहिद कहते हैं वही लोग ऐसा करते हैं। तो अच्छा, अभी तो मचल मचल के सुभान अल्लाह कही चुके हो। जब से मचल मचल के सुभान अल्लाह हुआ है, तब से डीजे पे और मचलना आ गया। और अब फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे टाइटल देते हैं कि हंगामा मचा दिया, शायर ने जलसे में हंगामा मचा दिया। हंगामा किसे कहते हैं? चिलबहार करवा के, लड़ाई करवा के, झगड़ा करवा दे और हंगामा करवा दिया। हंगामा मचा दिया। ना पढ़ने वाला जब से हंगामा करने लगा है तब से महफिलें कमजोर हो गई है। और जब से मचल मचल के सुभान अल्लाह कहें और एडवांस में सुभान अल्लाह कह दीजिए। मैं कहता हूं हर नात खां से, हर खतीब से कि ऐसी मीठी आवाज निकाल दो कि बगैर आपके कहे वो सुभान अल्लाह बोल दे। ऐसा मजमे पे सावन भादो की बारिश बरसा दो अपनी आवाज से। ऐसा जादू चला दो मजमे पे कि खुद बखुद वो सुभान अल्लाह नारा लगाने पे तैयार हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये रूहानी ग़िज़ा जब तक महफिल पे नहीं पहुंचेगी तब तक जबरदस्ती आप ऐसे करवाते रहो। तो मेरे अजीज भाइयों, शादी है, शादी सुन्नत है। इनके शहजादे क्या नाम है बच्चे? अकबर अली। बाबू हैं कहाँ? चलो कोई बात नहीं, अभी बैठे थे, देखिए काम में मसरूफ हैं। चलिए रहने दीजिए, आज बताऊंगा थोड़ी सी बात। आओ, यही है, आइए आइए, कुर्सी पे बैठिए, मुबारक हो। अल्लामा अंसार साहब बहुत अच्छा बोले, तो पढ़े उसे में नसर और नस हुई। बाबू बड़े साहब, छोटे हैं ना, बड़े साहबजादे का आ नहीं पाए, इसलिए कोई बात नहीं है। बेटा, आपका मकाम बढ़ने जा रहा है, आपका मकाम बढ़ने जा रहा है। इसी टॉपिक पे थोड़ी देर बोलूंगा। वैसे अब मैं लास्ट में जब बोलता तो डर नहीं रहता किसी चीज़ का कि अभी कोई आने वाला है, 10 मिनट 15 मिनट ज़्यादा बोल देता। लेकिन अभी तो दाएं बाएं बैठे हुए हैं और अच्छे अच्छे लोग बैठे हैं। तो दोस्त दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना हबीबना मुहम्मद सल्लल्लाहु सलामन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मरतबा उसूल बरकत के लिए नबी और आले नबी पर बाज़ बुलंद सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिहि वसल्लम सलातो व सलामन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इस वक्त काबा का मंजर अजीब है। जिधर से देखो उधर से दीवाने रसूल, ज़ायरीन हरमैन तैयबैन वहां पहुंच रहे। शायर कहता है, दिल बेकरार का दिल बेकरार, देखने को तैबा की बहार। दिल बेकरार का
दिल बेकरार। तो जो दीवाना होगा वो हमेशा नबी के अपने ख्यालों में बसा के रखेगा। जर नहीं के चल सकूं मैं, पर नहीं के उड़ सकूं, जोर है न ताप है कि अपने दर से टल सकूं। या रसूल अल्लाह आप अगर करम करे तो दर पे मैं चल सकूं। अपनी बेकसी पे हूँ हुजूर आशिक बार। दिल बेकरार का दिल बेकरार। शामियाना रहमतिया पे है लगा हुआ। आ जाओ बैठ जाओ, अभी आपकी तारीफ इमाम साहब कर रहे थे कि महफिल के हीरो ये भी। शामियाना रहमतिया पे है लगा हुआ, मजमे मलाइका यहाँ पे है लगा हुआ। शायर नबी के तैयार की बात किया है। शामियाना रहमती वहाँ पे है लगा हुआ, मजमे मलाइका वहाँ पे है लगा हुआ। नूर से भरा हुआ, नूर से भरा हुआ मदीने का दयार। दिल बेकरार का दिल बेकरार। तो मेरे अजीज भाइयों, सादगी से बैठे हो, बड़े अच्छे लग रहे हो। अल्लाह हम सबके बैठने को अपनी बारगाह में कबूल। तो यही बताना है शादी में क्या चीज जरूरी है और क्या फर्ज है, क्या सुन्नत है, क्या वाजिब है। शादी में लंबी बारात ले जाना ये क्या है? गुनाह है। आजाद भैया काहे लंबी बारात ले जाना गुनाह है? कब? जब लड़की का बाप कमजोर हो तब। अच्छा चलिए, सगरा खोदना क्या है? कलसा भरना क्या है? यह हल्दी जो होती है, हल्दी होता है ना एक दो दिन पहले, ये क्या है? ठीक है, इमाम से पूछ लो यार, सुन्नत है तो करो, वाजिब है तो करो, सवाब भी मिलेगा। लेकिन इमाम से पूछो, पढ़े लिखे से पूछो। चलो ठीक है, मेरी माँ और बहन है ये सब करती हैं। अच्छा चलिए, बारात लेके वहां पहुंचे तो लड़का जो पलंग पे जाता है ना लड़का आंगन में, वो क्या है? पता नहीं है, अभी तक पता नहीं है। पोता वाला हो गया, बाबा बन गया, लेकिन पता नहीं कि मैं जो पलंग पे गया ये फर्ज था या वाजिब था या सुन्नत। पता नहीं अभी तक लगा पाई है ये कौम की जो सगरा खोदा जा रहा है ये क्या है। अभी तक किसी को एहसास नहीं हुआ कि हम जो ये कर रहे हैं ये सुन्नत समझ के कर रहे हैं, वाजिब समझ के कर रहे हैं, फर्ज समझ के कर रहे हैं। आखिर है क्या? चलिए, जो फर्ज वाजिब सुन्नत हो बता देता हूँ। शादी में 6 चीजें ऐसी हैं जो जरूरी हैं, फर्ज वाजिब सुन्नत से ताल्लुक रखती है। वो 6 चीजें क्या है? 3 सुन्नत है शादी में, 3 चीज सुन्नत है। वो क्या है? खुतबा पढ़ना, चौहारा तकसीम करना और वलीमा करना। ये 3 चीज क्या है? सुन्नत है। और फर्ज क्या है? एजाबो कबूल, लड़की को इजाजत देना, लड़के को कबूल करना, ये फर्ज है। अगर नहीं पाया गया तो शादी नहीं। एक फर्ज ये हुआ, और एक फर्ज हो जो गवाह लोग होते हैं, गवाहों का होना। तो शादी में 2 फर्ज मिल गया, 3 सुन्नत मिल गए। अब वाजिब है, एक चीज वाजिब है। वो वाजिब क्या? जो कहा हुआ हो
काथिन बान जो का मनवावत नहीं है मार पे का बानत ही लेकिन बानत का भी दुनिया बहुत तरक्की कर चुकी है मेरे भाई। महार उसको क्या बोलते हैं? महार। मेहर कहा तो भी गलत, मोहर कहा तो भी गलत। मोहर ठप्पा को कहते हैं, मेहर चांद को कहते हैं, और महर कीमत को कहते हैं। वो महर है जबर के साथ, ठीक। और महर 3 तरह का होता है। कितने तरह का? 3 तरह का महर होता है। एक महर महरे मुअज्जल है, दूसरा महर महरे मुअज्जल है, और तीसरा महर महरे मुतलक है। अब बताओ, ये 3 महर हो गया। चलिए ठीक है, शादी इबादत है। शादी क्या है? इबादत है। इबादत को इबादत के तरीके पे करना चाहिए। अजीजा ने मिल्लत इस्लामी आका ने फरमाया निकाह आधा ईमान है। अब पता ये चला, अभी तक अकबर अली जब तक निकाह नहीं किए थे ईमानदार तो थे, लेकिन आधा ईमान लिए चल रहे थे। अब कल जब ये इकरार कर लेंगे, कबूल कर लेंगे, तो आधा ईमान उनको और मिल जाएगा, यानी मुकम्मल आ जाएगा। माँ बाप पर बच्चों का कितना हक है भाई? 3 हक है। कितना हक है? 3 हक है। पहला हक ये है कि बच्चे पैदा हो तो अच्छा नाम रखो। दूसरा हक ये है कि बच्चे बड़े हों तो उनको अच्छी तालीम और तरबियत का इंतजाम करो। तीसरा हक ये है कि जब बच्चे बालिग हो जाए, शादी के दहलीज पे आ जाए, तो वक्त पे उनकी शादी कर दो। यही 3 हक है। लिहाजा लोगों अपने बच्चों की शादी वक्त पे कर दिया करो। अगर आप अक्सर एक आज कहते हैं क्या तो मेरा बच्चा भी पैर पे खड़ा नहीं हुआ, जबकि 1.5-2 साल में बच्चा खड़े होके चलता, अभी खड़ा नहीं हुआ, मतलब ये कि अभी कमा नहीं रहा। अरे वो कब कमाएगा? कब शादी करोगे? अगर खुदा ना खास्ता वो शादी के दहलीज पे आया और गलत कदम उठा लिया तो उसका जिम्मेदार वो बच्चा नहीं होगा, बच्चे का गार्जियन होगा, उसको जवाब देना होगा। लिहाजा आओ देखो, ये शादी रिश्ता, आज कुछ लोग ये सोचते हैं कि नस्ल फैलाने के लिए रिश्ता किया जा रहा है। ठीक है, नस्ल फैलाने के लिए ठीक है, कुछ लोग अपने ख्वाहिशात नफसानी को बुझाने के लिए रिश्ता करते हैं, लेकिन नीयत बदल दो, सवाब सुबह क़यामत तक मिलता नजर आएगा। आओ देखो, ये रिश्ता एक अहम रिश्ता है। अगर इंसानी रिश्ते में कोई रिश्ता दिखाई दे रहा है तो सबसे पहले कोई रिश्ता दिखा है तो बाप बेटे का रिश्ता नहीं है, भाई भाई का रिश्ता नहीं है, बेटी बाप माँ का रिश्ता नहीं है। सबसे पहला रिश्ता इंसानों में अगर कोई दिखाई दे रहा है तो बीवी और शौहर का रिश्ता दिखाई दे रहा है, मर्द और औरत का रिश्ता दिखाई दे रहा है, जो आदम और हव्वा के दरमियान सबसे पहले रिश्ता हुआ। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, या सलाम, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, जश्न शादी खाना आबादी जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, या सलाम। मेरे अजीज भाइयों, ये नियत करो कि है मेरे मौला, मैं रिश्ता कर रहा हूँ, मेरे घर में कोई अल्लाह का वली आ जाए। अल्लाह मुझे अच्छी औलाद अता फरमा, मेरे घर में कोई ऐसी मेरी नस्ल में औलाद आए कि जो मेरे खानदान को रोशन करे। ये सब दुआएं करो, औलाद सालेह की दुआ मांगो, अल्लाह जरूर अता फरमाएगा। भूल गए सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह अक्सर व बेशतर दुआएं मांगा करते थे, यही अल्लाहुम्मा रब्बि हबली मिनस सालिहीन। 60-70 साल की उम्र हो गई, औलाद नहीं हुई, मांगते रहे दुआ। अल्लाहू अकबर। आप जब काबतुल्लाह को बनाने लगे और जब काबा को मुकम्मल कर दिए, जिस पत्थर पे खड़े होकर काबा बनाते रहे, डेली उतरते और चढ़ते रहे, लेकिन उस पत्थर पे कभी इब्राहिम का कदम नहीं दिखाई दिया। अल्लाहू अकबर। जब मुकम्मल कर दिया काबा को बनाकर, रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, ऐ मेरे माबूद, मुझे मजदूरी दे दे, मैं तेरा घर बना दिया हूँ, तेरा मुकद्दस घर तैयार किया हूँ, अब मुझे मेरी मजदूरी मेहनताना दे दे। रब्बे करीम फरमाता है, ऐ मेरे खलील, जो भी मांगना है मुझसे मांग लो, क्या चाहते हो मजदूरी में देने को तैयार हूँ। बेशक तूने मेरा मुकद्दस घर बनाया है। तो इब्राहिम खलीलुल्लाह ने क्या मांगा है? हाँ, दौलत नहीं मांगी है, बादशाही नहीं मांगते हैं, और कुछ नहीं मांगते हैं, सबसे
سے پہلے اللہ کی بارگاہ ہم یہی کہتے ہیں، اے میرے معبود، جس نبی کا تذکرہ تورات میں آیا ہے، جس محمد کا ذکر زبور میں آیا ہے، جس محمد کا ذکر انجیل میں آیا ہے، اور جس محمد کی تعریف کم و بیش 1,24,000 نبی کے زبان پہ آیا ہے، اسی محمد کو میری نسل میں پیدا کر دے، اسی محمد کو میری نسل میں پیدا کر دے میرے مولا، یہی میری